વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર. સર્વેની આંખો બંધ. ઓમ સહનાવવતુ સહનો ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહે તેજસ્વી નાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. Lesson 8 is going on. Cell, the unit of life. Today is its fifth lecture in which we will study about mitochondrion. Mitochondria, that is plural, and chondrion, it is singular. This, if we want to observe in the cell, we are to use stain. स्टेनिंग का नाम एक मैंने आपको बताया था इन अवर प्रीवियस लेक्चर, मिथिलिन ब्लू. हियर वन मोर विच इज कॉल्ड जेनस ग्रीन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेनिंग, mitochondria can be clearly seen under the microscope. So let we start. It's some of the structural things to be studied today. The first thing, if we think about its shape, let me write that point over here. Shape may be sausage or cylindrical. So we can say that shape vary. Shape may sausage. This is one special item made by white skin people. मटन की आइटम सॉसेज उसको बोलते हैं. उसका शेप करीब करीब ऐसा होता है. सिलिंड्रिकल भी होती है माइटोकॉन्ड्रियन. इफ वी टॉक समथिंग अबाउट साइज, ऑल्सो इट वेरी. इट्स अ टोटल नंबर इन द सेल वेरी. So the variation occurs in the shape, in the size, in the number. If any cell has more amount of mitochondria, would mean that this cell needs too much energy for its performance. So now one thing is very, very clear, that this is concerned with the generation of ATP molecules, and these ATP molecules is nothing but the storage particle of energy. ATP molecules के अंदर energy storage है. So we can call this mitochondria as powerhouse of cell. रेड बॉल पेन से लिखूंगा, पावर हाउस ऑफ सेल. Why? Because it is concerned with the generation of energy. I have used the term generation of energy. When in any biology book, if you read that generation of energy occurs over here and there, we know very well that according to the law of thermodynamics, energy cannot be generated. So why such kind of the sentences are written in so many biology books, that energy is generated in mitochondria? The simple meaning, not energy. There we are to understand ATP molecules are synthesized, ATP molecules are generated, and in this molecule there is a storage of energy. When ATP molecules are broken down, the energy is liberated and it is going to be utilized for our biochemical performance, every function, those which are occurring in our body or in any living organism, we can say. So remember one thing, that when the energy is generated would mean that ATP molecules are formed. So this is the organelle which is concerned with the synthesis of ATP molecules, mitochondrion. That is why it is called powerhouse of cell. तो ये अपने को एनर्जी देता है, ये सेल को भी एनर्जी देता है.
ये जो मिथिलीन ब्लू अभी जो ये कोरोना के अंदर दिया जाता है, उससे जो एक परोक्ष इफेक्ट हो रही है वो एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है. सो मोर एनर्जी can be liberated at the time of the breakdown of these ATP molecules. Methylene blue. It is also dye. It is also stain, and it is used as one kind of the medicine in the corona patient too. You might have heard about this. Now we are going to see the internal structure. This is having two membranes. या फिर मेम्ब्रेन की बिना होती है, या फिर दो मेम्ब्रेन वाली, तो या फिर एक मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन वाली है माइटोकॉन्ड्रिया. आई विल ड्रॉ इट्स अ फिगर. पहले मैं ऐसे यहां पर ड्राइंग कर रहा हूं, ऐसे. द आउटर मोस्ट बाउंड्री कंटिन्यूअस एंड इनसाइड देयर इज ल्यूमेन. ओके. Now, if I draw the second layer, would mean that this is dividing the inner part into two clearly visible compartment. ये मैंने इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ किया, ये मैंने आउटर मेम्ब्रेन ड्रॉ किया है. तो जो अंदर की एक जगह थी, it is converted into two parts, outer part and inner part. This is called matrix. This is called matrix. तो यहां पर मैं ऐसे थोड़ा सा रेड कलर का ड्राइंग कर देता हूं कि भाई ये मैट्रिक्स है. इट इज मैट्रिक्स. दिस पार्ट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. नाउ दिस इज न्यू टर्म. याद करो जो अपना सेमिनार था, नई टर्म आई कि भाई मैट्रिक्स क्या है. माइटोकॉन्ड्रियन में दो लेयर होता है. जो अंदर का लेयर है उसके अंदर की बाजू जो भी पड़ा है सब्सटेंसेस, इट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है. सर्कुलर डीएनए आया तो अपने को वो प्लाज्मिड सोचना है. उसके अंदर 70s काइंड ऑफ रिबोसोम्स होता है. ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल कौन सी? रिबोसोम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनेल? रिबोसोम. आंसर आएगा. इसके अंदर कंपोनेंट्स concerned with protein synthesis. I will write concern with protein synthesis. Protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस के साथ कंसर्न जो भी चीज होती है वो सब इसके अंदर है. किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन जिसकी बाउंड्री है उसके अंदर का जो पार्ट है वो मैट्रिक्स कहलाता है. ओके. अभी देखना हो यहां पर, दिस इनर मेम्ब्रेन इनवेजिनस टुवर्ड्स इनर साइड. ये इनफोल्डिंग है, अंदर की तरफ फोल्ड हुआ. ओके. अंदर की तरफ फोल्ड. तो ये इनर मेम्ब्रेन ही है, उसका ये सब इनफोल्डिंग है. ये एक स्ट्रक्चर बना, उसको बोलते हैं क्रिस्टा. सो इनसाइड वी फाइंड सो मेनी क्रिस्टाई. So many cristae. The most important thing about mitochondrion is this cristae. I will teach you that what kind of the structures are located on the cristae and for what purpose it is formed. Okay, now I will give this somehow 3D image. Now the imagination is clear in your mind that how this might be present inside our cell.
आउटर मेम्ब्रेन, ये सब इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट है वो सब पार्ट क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स है उसके अंदर सर्कुलर डीएनए, उसके अंदर 70s राइबोसोम, उसके अंदर कंपोनेंट विच आर कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस, वो सब है। और इनर मेम्ब्रेन का इनर साइड का फोल्डिंग्स कहलाता है क्रिस्टा। ये जनरली ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकता है। अभी इसका थोड़ा सा अपन 3D स्ट्रक्चर देखे तो ये ऐसा रहेगा ना, ये इसका थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर कर दिया। ओके, so this kind of the figure in your mind must be cleared. ये सब मैट्रिक्स। Let me write down all the name. Outer membrane, inner membrane, हो गया। So two main term, cristae and matrix. This is the most important. Now this organelle is concerned with ATP formation. In another word, what we can say? It is concerned with the generation of energy. Energy SSC में आ गई aerobic respiration, anaerobic respiration. This organelle is concerned with aerobic respiration. Now what is the meaning of aerobic respiration? Aerobic respiration, respiration that occurs in the presence of oxygen is called aerobic respiration. But what is the meaning of respiration? Respiration is the process in which organic simple substance like glucose is broken down and the energy is liberated. If this so happens in the presence of oxygen, then it is called aerobic respiration. And if this so happens in the absence of O2, then it is called anaerobic respiration. So one idea is very clear that for making successful aerobic respiration, you need mitochondria. And mitochondria is double membrane organelle. And membranous organelles are always present in the eukaryotic cell, would mean that each and every eukaryotic cell respire aerobically. Whereas in case of the, if we think about prokaryotic cell, such kind of the organelle is absent, would mean that they are anaerobes. They are anaerobes. उसमें भी एक्सेप्शन होता है। तो अपने को एक बात यहाँ पर पता चली कि जो भी कोई यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियन होती है, तो वो सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। वन मोर डिफरेंस आई वुड लाइक टू टेल यू in between aerobic and anaerobic. When the oxidation of the one molecule of the glucose occur in the presence of oxygen, more energy is liberated, whereas it is very less energy in the absence of O2. So it is good for us, it is good for eukaryotic cell. तो भाई ऐसा क्यों हुआ? तो कि यूकैरियोटिक सेल की कॉम्प्लेक्सिटी वो जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल है उससे ज्यादा है, उसके अंदर काम ज्यादा चल रहा है, उसके अंदर ज्यादा काम चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोटिक सेल्स नीड मोर एटीपी मॉलिक्यूल्स, फॉर देयर मस्ट बी समथिंग which can generate more ATP, and it is mitochondrion. So in aerobic respiration, three phases occur. The first you know very well, glycolysis. Glycolysis, breakdown of glucose into pyruvic acid.
Pyruvic acid is Ca3CO, COOH, and glucose is C6H12O6. Glucose is C6H12O6. So you can see here that from the 6 carbon containing substance, 3 carbon containing substance is formed. Would mean that जो भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था, ये सब बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया. So you know very well the chemistry, then when the bonds are broken down, energy is liberated. This is fact. So this is the first phase of aerobic respiration. You have already studied this phase in SSC. This phase occurs. ये कहाँ पर होता है? तो ये सपोज अपना सेल है. जो अपना सेल है उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रियन है, समझ लो. तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में होता है. सेकंड फेज क्रेब्स साइकिल. And third, the most important, oxidative phosphorylation. These two phases take place in mitochondria. Krebs cycle and oxidative phosphorylation in mitochondrion. ये इसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर होता है. ओके. So now we are entering to very interesting part of our lecture. Very, very interesting part, which is going to be useful to understand lesson number 14 of 11th. ये तो हो गया अपना. हाँ, अभी एक बात आपने नोटिस की, इसका एक अपना डीएनए है. ये देखो, सर्कुलर डीएनए, उसका अपना. तो ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, वो अपने आप चलती है, उसका कंट्रोल अंदर से हो रहा है. ये जो कंट्रोल करने वाला है वो डीएनए है, उसका अपना दिमाग लेके आई है. और क्लोरोप्लास्ट भी ऐसी ही है. अभी जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रियन. उसके अंदर भी अगर जाए बाइफर्केशन में, तो Krebs cycle is taking place in the matrix, whereas oxidative phosphorylation is taking place in Christie. ये होता है, ये जो रेड कलर का मैंने यहां पर रखा है मैट्रिक्स, उसके अंदर ये जो पूरा का पूरा अंदर का पार्ट था, वो एक अंदर वाला एक बाहर वाला, ये दो में अभी डिविजिबल है. उसको एक्वियस पार्ट बोलते हैं. एक्वियस मतलब जलीय, मतलब जिसके अंदर वाटर होता है. तो यहां पर तो बहुत सारी चीज है. तो ये एक अंदर वाला बना, एक बाहर वाला बना. क्यों बना? ये इनर मेम्ब्रेन की वजह से बना ना. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड फेज. नाउ व्हाट हैपेंस इन द Krebs cycle? I have just delivered the definition of aerobic respiration. उसमें मैंने आपको एक चीज बताई कि ग्लूकोज में जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन हो रहा है. यहां पर थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया. Now this pyruvic acid entered to mitochondria. It will reach to the matrix where it is going to be broken down. Remember one thing, very, very clear, this thing must be in your mind. Glycolysis is occurring in the cytoplasm. So here the breakdown of the glucose occurs, so as pyruvic acids are formed, and the pyruvic acid entered to mitochondria. वो एंटर हो जाता है Krebs साइकिल में. दिस इज द होल प्रोसेस विल कम टू यू इन द लेसन नंबर 14. अगर मैंने यहां पर लिखा है कि भाई चलो ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड बना है, तो दिस इज नॉट द वन स्टेप प्रोसेस, इट इज 10 स्टेप प्रोसेस. ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में से DHAP and PGL, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, उनमें से आगे 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 ऐसे झाके धीरे धीरे ब्रेकडाउन होके ये अभी हमारा पायरुविक एसिड बना है. पायरुविक एसिड का जब ब्रेकडाउन होगा तब ऐसे ही
बहुत सारे केमिकल बनते 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 उसका धीरे 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 ब्रेक डाउन हो, एंड इवेंचुअली वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है CO2 और H2O में। तो ये जो Krebs साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, Krebs cycle is occurring in matrix, oxidative phosphorylation is occurring on crystal। ये एक यहां पर मैं ड्राइंग कर रहा हूं, थोड़ा सा एनालाइज किया, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिस पड़े हुए होते पार्टिकल्स, और ऐसा ही एक पार्टिकल का नाम मैं अभी रखता हूं F1 पार्टिकल। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड F1 particle। This is one enzyme। F1 is an enzyme with the help of which adenosine diphosphate binds with phosphate to give adenosine triphosphate। तो F1 पार्टिकल की वजह से ATP बन रहा है, एंड दिस ऑल कंपोनेंट्स 1 2 3 4 5 रेड कलर वाला कलेक्टिवली में उसका नाम यहां पर रख देता हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज कॉल्ड ETS। तो ये F1 पार्टिकल मैंने यहां पर लोकेट किए हैं क्रिस्टा के ऊपर, यहां पर भी होता है, इनर मेम्ब्रेन में भी होता है। साइंटिस्ट डिड वन वंडरफुल एक्सपेरिमेंट, they removed F1 particles from the mitochondrion and what they found was no ATP generation occurred। તો જ્યારે તમે F1 ને કાઢી નાખો તો ત્યારે ATP નથી બનતા, F1 છે તો ATP બને છે, એનો મતલબ એમ થયો કે F1 ને કારણે ATP બન્યા, અને આગળ પછી બધા ડિફરન્ટ કાઇન્ડના રિસર્ચ થયા અને અલ્ટિમેટલી આ વસ્તુ પ્રૂવ થઈ। તો કેવું થયું, કેવું ખબર છે, એકદમ સિમ્પલ, વેરી વેરી સિમ્પલ, कि C6H12O6 plus O2 will give CO2 plus H2O plus ATP molecules। अभी इतना ही याद रखना है। तो ये जो अपने को दिख रहा है कि when the oxygen bind to C6H12O6 it is converted into CO2 plus H2 and ATP molecules are formed, it is not like that। For the synthesis of ATP, for the liberation of CO2 H2O, glucose molecule has to be broken down, passing through so many steps। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का ही 10 स्टेप तो है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल में भी स्टेप रहते हैं। पायरुविक एसिड में से एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ वो पहले बाइंड होता है और साइट्रिक एसिड बनता है, उसके बाद आइसोसाइट्रिक एसिड, उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, उसके बाद सक्सिनिक एसिड, उसके बाद फ्यूमारिक एसिड और फर्दर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये एक पूरा का पूरा साइकिल है, अभी याद नहीं रखना है, लेसन नंबर 14 में ये सब आने वाला है, 11th में ये। सो वी आर एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड दिस लेसन with this lesson, means 14th lesson with lesson number 8। wonderful thing। so what is happening, slowly step by step ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन। ऑक्सीजन का रोल यहां पर आता है, दैट आई विल टीच यू इन द लेसन नंबर 14, यहां पर आता है। CO2 क्रेब्स साइकिल के दौरान लिबरेट होता है, ये सब आएगा। सो आई विल प्रूव दिस इक्वेशन इन द लेसन नंबर 14 एंड लेसन नंबर 14 विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 लेक्चर। तो आप ये इतनी बात 4 या 5 लेक्चर तक पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखना है कि स्टेप वाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ, उसमें ऑक्सीजन का यूज आखिर में आता है, अंत में आता है। ये ब्रेकडाउन हुआ तो CO2 H2O, तो अपने को पता है कि भाई ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड थे वो सब ब्रेकडाउन हो गए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
ये आल्डो हेक्सो से फर्स्ट कार्बन आल्डिहाइड ग्रुप, 6th कार्बन में CH2OH होता है, बाकी यहाँ पर OH रहता है, OH रहता है, OH रहता है, OH रहता है, H रहता है, H रहता है, H रहता है, H. दिस इज ग्लूकोज. C6 1 2 3 4 5 6, H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, O6 1 2 3 4 5 6. As there are 6 carbon, it is called hexose sugar. 6 hexa, 5 penta. आपको याद होना चाहिए ना, टेट्रा 4, टेट्रा पेंटा हेक्सा, ऐसे हेप्टा ऑक्टा ने नडिका अंडिका डिडिका. तो ये ग्लूकोज, तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन, बॉन्ड 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 का ब्रेक डाउन, उसके अंदर जो एनर्जी थी वो बाहर आई. वो एनर्जी जब ये एटीपी बना तब उसके अंदर एंटर हो गई, ब्रेक डाउन हो गया CO2H2O में, एनर्जी बाहर आई, एनर्जी एटीपी के अंदर. अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये काम हो रहा है, तब ये एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं इनटू एडीपी प्लस पी प्लस ये एनर्जी बाहर आएगी. ये जो एनर्जी बाहर आती है उससे काम होता है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रियन. एनर्जी का जनरेशन कर रहा है. अभी हम ऐसे बोल सकते हैं, मगर एनर्जी कभी जनरेट नहीं हुई. एनर्जी यहां से लिबरेट होके एटीपी में गई, एटीपी में से लिबरेट होके बाहर आई, उससे ये अपना सब कामकाज चल रहा है. So I will be teaching you the name of this each and every molecule, those constitute electron transport system, the role of oxygen, F1 कि जैसा यहाँ पर F0 भी होता है, F0 भी होता है, ये सब आएगा. अभी when you go through this topic from the material, ये सब तो नहीं है, मगर ये सब आपको जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो याद होना चाहिए. ग्लाइकोलिसिस क्या है और क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां पर होता है. द एडिंग ऑफ फॉस्फेट टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन. यहां पर एडीपी में ये फॉस्फेट एडिंग हो रहा है, सो एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है. सो दिस प्रोसेस इंडिकेट्स फॉस्फोराइलेशन. ये अपनी प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन इंडिकेट करती है. If we revise this, शेप कैसा होता है, तो शेप में तो वो तो मुझे याद था, वरना शेप तो आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, मतलब कि मटेरियल में से पढ़ना है. साइज भी दी गई है, अभी आपको दिखाता हूँ. टोटल नंबर वेरी फ्रॉम सेल टू सेल. अच्छा, मैं यहाँ पर हमारा मसल सेल ले लेता हूँ. हमारा हार्ट का जो सेल है वो कंटिन्यूअस हार्ट तो काम कर रहा है, हार्ट बीटिंग 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 बीटिंग, सोचना 9 सेल. अगर मैं अपना स्किन का सेल लूं, सो आई वांट टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्किन के सेल या फिर अपने मसल सेल, ये जो दोनों सेल है उनमें से किस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी? आंसर वुड बी मसल सेल. जहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वहां पर माइटोकॉन्ड्रियन ज्यादा, जहां पर एनर्जी की जरूरत कम है वहां पर माइटोकॉन्ड्रियन कम, क्योंकि वहां पर एटीपी सिंथेसिस इतना ज्यादा नहीं करना है, कम करना है. तो ये एक सेंटेंस हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बाकी स्ट्रक्चर में बाहर का मेम्ब्रेन, अंदर का, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. सो द इनर ल्यूमेन इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट. एक ये पार्ट बाहर वाला रहेगा, एक ये पार्ट अंदर वाला. अंदर वाला के ऊपर अभी हमको कॉन्सेंट्रेट करा. इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कंटेन सर्कुलर डीएनए, 70s kind of the ribosome, plus all other component those which are concerned with protein synthesis. तो अंदर अपना ये सब करने के लिए जो भी एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो ये माइटोकॉन्ड्रियन अपनी तरीके से बना लेता है. इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टा. सो मेनी क्रिस्टा आर देयर. उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लस F1 पार्टिकल होता है. ये सब मिलके एरोबिक रेस्पिरेशन को सक्सेस बनाता है. एंड in the end of the aerobic respiration, ATP molecules are generated.
लेकिन जो बुक में लिखा है एनर्जी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, तो ये एटीपी लेना है। तो ये एटीपी के सिंथेसिस के साथ कंसर्न ऑर्गेनेल है, इसीलिए उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। हो गया, बहुत सिंपल है। अभी व्हेन यू गो थ्रू दिस टॉपिक यू विल कम टू नो, आई नो वेरी वेल दिस। नई टर्म कौन सी आई? मैट्रिक्स और क्रिस्टल। बाकी नया कुछ एक ग्लाइकोलिसिस यू नो वेरी वेल, क्रेब्स साइकिल ये नया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। This is the third phase of aerobic respiration. Now, let me take one small topic, cell wall. थोड़ा सा टाइम है तो ये तो सेल वॉल तो बाहर रहती है, सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर। हमने देखा था फॉर एग्जांपल, सपोज ये अगर सेल मेम्ब्रेन है प्लांट में, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो आउटर टू इट रिमेन सेल वॉल। सेल वॉल अपन लोग ड्राइंग करेंगे ब्लू कलर से, ओके। फंजाई में भी रहती है, फंगस आल्गी में भी रहती है। दिस इज सेल वॉल। तो अभी ऐसे उसको ड्राइंग करते हैं तो हमको पता है उसके अंदर ट्यूब्युलर पैसेज रहते हैं सेल वॉल में। सेल वॉल के अंदर ट्यूब्युलर पैसेज, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ व्हाट माइट बी द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? तो पहले एक तो उसको शेप देना। बाहर का अगर कोई मैकेनिकल कोई भी उसको मारे बारे ऐसा कुछ करे तो उसके सामने लड़त। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर एंट्री के लिए आए तो उसको रोकना, मतलब इन्फेक्शन नहीं लगने देना। तो मैकेनिकल स्ट्रेस के सामने इफेक्टिव, शेप के लिए इफेक्टिव, और इन्फेक्शन नहीं होने देने के लिए। तो ये तो एक अपना कोट हो गया, एक अपनी आजू बाजू एक अपना कोटिंग हो गया, ओके। नाउ लेट मी ड्रॉ वन मोर सेल ओवर हियर। ये अभी प्लांट सेल की बात चल रही है। ये प्लांट सेल अभी अभी बन रहा है, तो उसकी जो सेल वॉल है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल वॉल। हमारी जब पढ़ाई स्टार्ट होती है तो हमारे माता पिता हमको डालते हैं पहले प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी आता है ना। तो जो पहले वाली होती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। उसके बाद बने वो सेकेंडरी। तो यहां पर सेल वॉल की मैंने ड्राइंग की। This is the cell wall of this cell and this is the cell wall of this cell. Between these two cell wall there is a middle lamella. रेड कलर से ड्राइंग करते हैं। ये क्या है? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, इट इज ए लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। तो ये जो भी कोई प्लांट होता है उसके अंदर टिश्यू होती है, वहां पर टू एडजेसेंट सेल की जो सेल वॉल होती है उसके बीच में होता है। That we are aware, and also we are aware about this plasmodesmata. तो ये प्लाज्मोडेस्माटा तो यहां पर भी रहेंगे, यहां पर भी रहेंगे। So this is cell. So these two adjacent cell are interconnected through plasmodesmata. So for the exchange of the material, this is very useful. प्लाज्मोडेस्माटा। अगर मूवमेंट कोई भी सब्सटेंस की यहां से यहां तक होनी है तो उसके लिए ये प्लाज्मोडेस्माटा इज मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और ऐसा होता है। दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन लेसन नंबर 11। एक आएगा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल पासिंग थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में से होते हुए जाता है आगे, मगर इसकी स्पीड बहुत ही कम रहती है।
दूसरा वाटर और आयन का ट्रांसपोर्टेशन सेल वॉल के थ्रू होता है, सेल वॉल के थ्रू, वो बहुत ही फास्ट होता है, दैट वी विल सी। तो ये अपनी प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल। उसका मैंने प्राइमरी सेल वॉल का क्या बोला, वो पहले बनी हुई। नाउ इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यू आर अवेयर, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टेन भी होता है उसके अंदर, प्लस प्रोटीन। ये 4 की होती है। नाउ इफ वी थिंक अबाउट algae, उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या क्या रहता है? सेल्यूलोज तो कॉमन है, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अभी ये जो चीज है ना, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स, ये सब पॉलीसेकेराइड है, मतलब शर्करा है। और फंजाई, काइटिन, ये याद रखना, सेल वॉल ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये सब सब्सटेंस का नाम है। तो इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट। नाउ लेट वी सी व्हाट हैपेंस व्हेन द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड। ये तो हो गई अपनी प्राइमरी सेल वॉल, अभी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है, अंदर की तरफ ये जो सेल वॉल है वो धीरे 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 डिमिनाइज हो जाती है, और अंदर की तरफ मैं यहां पर ड्राइंग करके बताता हूं। प्राइमरी ड्राइंग, अभी मैं सेल मेम्ब्रेन का ड्राइंग नहीं कर रहा हूं, सेकेंडरी में रेड कलर से ड्राइंग कर रहा हूं। सो दिस इज कॉल्ड थिकनिंग। एक वॉल की माफिक हो गया। सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन दिस थिकनिंग मे बी पैक्टिन भी हो सकता है और लिग्निन भी हो सकता है। इसकी माफिक सब्सटेंस तो प्लांट के अंदर वही सब रहते हैं। तो अगर थिकनिंग हो गया बहुत सारा हो गया, सेकेंडरी ये सेल वॉल हो गई, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि इसका अंदर का साइटोप्लाज्म खत्म, वो डेड हो गया, वो डेड हो गया। ऐसा भी होता है। दैट विल सी व्हेन वी विल बी स्टडिंग प्लांट टिश्यू। ये अपना जो सेकंड यूनिट आने वाला है उसके अंदर लेसन नंबर 5 और 6 आएगा, उसके अंदर ये सब चीज आएगी। तो बहुत सारे लेसन का अभी कोऑर्डिनेशन आज के लेक्चर में भी हुआ। आपको क्या अभी याद रखना है कि अगर वो प्लांट की सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल मेड अप ऑफ दिस थिंग्स, अगर वो आल्गी की है और आल्गा वीकेंस है, इट इज मेड अप ऑफ दिस थिंग, फंगस, काइटिन। आउटर मोस्ट है, उसका फंक्शन तो हमको पता ही है, शेप है, मैकेनिकल, उसको कोई आंच नहीं आने देनी है, और इन्फेक्शन के सामने लड़ाई है, अपनी स्किन भी अभी कर रही है वही इन्फेक्शन के सामने। यहाँ से कोरोना वायरस एंटर नहीं हो सकता, यहाँ से बैक्टीरिया एंटर नहीं हो सकता, यहाँ से फंगस एंटर नहीं हो सकती। ये एक तरीके से बैरियर बनाता है। प्लाज्मोडेस्माटा देखा हमने, इंटरकनेक्शन देखा, ओके। और सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन, तो सेकेंडरी बाद में बनती है। पहले जब एक नया अभी पौधा धीरे 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 धीरे
ये प्लांट सैपलिंग बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल वॉल। आफ्टर दैट उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल का डेवलपमेंट होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आज का हमने लेक्चर यहाँ पर लिया उसके अंदर पढ़ाई की एक माइटोकॉन्ड्रियन की, एक सेल वॉल की, ये दोनों चीज अच्छी तरीके से पढ़नी है। थोड़ी सी समझ इसके अंदर थी, कॉन्सेप्चुअल वाला थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर है, थोड़ा सा इसके अंदर, पूरा का पूरा मगिंग, पूरा का पूरा मगिंग और थोड़ा सा इमेजिनेशन। यहां स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा इमेजिनेशन। इतनी बात आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने रखी है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट वी सी slides of mitochondria. Mitochondria means so many. Mitochondrion 1, shape, sausage shape or cylindrical, we are aware. याद रखना है, पेन है ना हाथ में, वो पेन लेके बैठ जाओ। शेप, सॉसेज और सिलिंड्रिकल, सॉसेज सिलिंड्रिकल, सो ऐसे याद रखो। डायमीटर, उसका डायमीटर 0.2 to 1.0 म्यू एम। याद रहा? ये सब साथ में याद रखने का है, बिकॉज दिस थिंग्स आर टू बी मग्ड। આઈને અહીં જ તે થઈ જવી પડે, પેન હાથમાં જ રાખવાની છે। डायमीटर 0.2 to 1.0, एवरेज कितना है? 0.5 म्यू एम। तो पहला आया सोसेज सिलिंड्रिकल 0.2 to 1.0, इन द ब्रैकेट एवरेज 0.5 म्यू एम। यूनिट भी याद रखना पड़ेगा, म्यू एम। हो गया ये? एक बार लिख दो, फटाफट लिख लो, फटाफट, देखे बिना, देखे बिना। सोसेज सिलिंड्रिकल, ऐसे याद रखना, सोसेज सिलिंड्रिकल 0.2 to 1, 0.5 एवरेज। लेंथ कितनी है? 1.0 to 4.1 म्यू एम। तो यहां पर हम आखिर में एक पे अटके थे, यहां से स्टार्ट, तो अभी यहां से 0.2 to 1 इन द ब्रैकेट 0.5, नीचे 1 to 4.1, 1 पे खत्म है। देखो, ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि अपन के माइंड के अंदर ये साइज फिक्स हो जाए। नाउ व्हेन एवर द क्वेश्चन विल कम, तो आपका जो माइंड है उसके अंदर अभी कैसे ये फिक्स हुआ है? 0.2 to 1 इन द ब्रैकेट 0.5, एक पे अटका, एक से 4.1 पे झटका, एक पे अटका, एक पे खत्म, 4.1, वो उसकी लेंथ हो गई। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, डिवाइड बाय फिशन। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, at the time of cell division, suppose this cell undergo cell division, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस ऐसे ड्राइंग कर देते हैं, और अंदर एक माइटोकॉन्ड्रियन है। अभी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सिर्फ एक, मान लो, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रियन डिवाइड बाय फिशन। अभी ये फिशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, विभाजन जिसको हम बोलते हैं। हाँ, तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड आई थी एसएससी में, बाइनरी फिशन। फॉर एग्जांपल अमीबा है तो वो एक में से दो होता है, तो ऐसे ही ये जो अपनी ऑर्गेनेल है वो भी एक में से दो होती है। तो अभी ये सेल को एक में से दो होना है, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस, ये दो में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया रख रहा हूँ, ये जो एक वाली थी वो दो हो गए, बिकॉज इट इज सेमी ऑटोनोमस। उसके पास अपना ब्रेन है, उसके पास अपना सर्कुलर डीएनए है, अंदर सब कुछ साधन सामग्री है। अभी जब ये सेल में डिवीजन होगा, दो सेल बनेंगे, तो हर एक सेल के अंदर एक एक माइटोकॉन्ड्रियन होगी ना, एक एक होगी। ये याद रखना, अपनी टेक्स्ट बुक में फाइनल लाइन ये है,
अपने जो मटेरियल है उसके अंदर फाइनल लाइन ये है। ओके, तो और एक ऐसी ऑर्गेनेल है, देयर इज वन मोर ऑर्गेनेल दैट हैज इट्स ओन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर, इट इज अवर क्लोरोप्लास्ट। तो ये जब ऑर्गेनेल आएगी तब ये सब आएगा ना। तो ये दोनों ऐसी है कि उसका इवोल्यूशन कुछ अलग तरीके से हुआ, क्योंकि उसके पास उसकी जो अंदर चलती हुई कोई भी प्रोसेस होती है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए अपना एक डीएनए है। अभी आगे बढ़ते हैं, एक फिगर होगी, ये फिगर को हम देख लेते हैं। द फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेट वी एनलार्ज दिस फिगर, इट इज गिवन इन अवर बुक। अभी ये मैंने आपको दिखा दी है 3D में, मगर यहाँ पर थोड़ी सी एनलार्ज करके। ये देखो, पहला आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अभी जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के जो बीच में होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सेल सेल के बीच में इंटर सेल्यूलर, सेल के अंदर उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्यूलर। सो व्हाट वी कैन से दैट ऑर्गेनेल्स आर विद इन द सेल, सो दिस आर इंट्रासेल्यूलर। तो अगर कोई सेल के अंदर है तो अपने को याद रखना है कि इंट्रासेल्यूलर टर्म यूज करनी है। सेल सेल के बीच में मतलब कि उसके बाहर है, इंटरसेल्यूलर। यहाँ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पर फ्लूइड है तो इंटर मेम्ब्रेन फ्लूइड, तो वो कोई एक लेयर लेयर के बीच वाली जगह है, सेल सेल के बीच वाली जगह इंटरसेल्यूलर स्पेस। अगर उसके अंदर फ्लूइड है तो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, और अगर सेल के अंदर है तो इंट्रा, यू आर टू यूज टर्म इंट्रा। एंड व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा, इट इज आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इट इज आउटसाइड द सेल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल से बाहर की बात हो रही है। तो ये तीन नाम आ गए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद दो अपने को याद ही है, मैट्रिक्स और क्रिस्टा। नाउ सपोज वी आर आस्क्ड वन क्वेश्चन, ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। चार ऑप्शन दिए गए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्रिस्टा में होता है, Krebs cycle is taking place in matrix, glycolysis is taking place in cytoplasm. These are the three phases of aerobic respiration. ये जो हेडिंग है उसके अंदर जो भी प्रोसेस आती है वो सब लेसन नंबर 14 में आ रही है। तो ये कुंडली हो गई पूरी की पूरी माइटोकॉन्ड्रियन की। एटीपी जनरेट होता है ना इसके अंदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये भी अपने को याद रखना है। ओके, तो on the basis of this figure question can be asked that which of the following sequence is correct for the mitochondrion moving from outside to inside। पहला आएगा आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा आएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तीसरा आएगा इनर मेम्ब्रेन और चौथा आएगा मैट्रिक्स। ये चार रहेंगे। एंड फ्रॉम इनर टू आउटर, तो मैट्रिक्स से आउटर मेम्ब्रेन तक जाना है। This kind of the questions are there in the NEET paper, especially if I talk about last 2 year NEET paper। अपने को पता नहीं चलेगा कि ये क्या पूछ रहा है, मगर if you have gone through the figure and if you are aware about the theory, the answer will be very very easy because imagination is required। imagination, तो आपने आंख बंद करके सोच लिया कि भाई चलो माइटोकॉन्ड्रियन की फिगर में अपन लोग पढ़े थे क्या, साहब ने हमको बोला था कि पहले बाहर का लेयर होता है, अंदर का लेयर होता है, उसमें इन्वेजिनेशन होता है, बाहर का लेयर और अंदर का लेयर के बीच में एक स्पेस होती है, उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो बाहर का लेयर, उसके बाद ये स्पेस आएगी, उसके बाद अंदर का लेयर आएगा और उसके बाद जो अंदर है वो आएगा, वो क्या है, मैट्रिक्स। तो ये जो इमेजिनेशन फिगर की है वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। ये देखो, ये फिगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की है। व्हाई दे आर गिविंग इन ए 3D? व्हाई? बिकॉज
they know very well that this is the subject can't be understood without 3D imagination. આપણે જે સેમિનાર કર્યો તેમાં આ જ હતું કે ઇમેજિનેશન ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન નોલેજ. તો કોઈ પણ સબ્જેક્ટ તો even if you take physics, if you take chemistry, सब में इमेजिनेशन तो चाहिए ही चाहिए. मैथमेटिक्स टेन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, वी नीड इमेजिनेशन. So that must be developed slowly, slowly, slowly. It will be developed within just coming up 1 month. Okay.